وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. برادران اسلام اور حاضرین مجلس، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس میں جہاں اور بہت سے تاریخی واقعات نظر آتے ہیں، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تاریخ ساز واقعہ اپنی مثال آپ ہے. دونوں باپ بیٹے کی فقید المثال قربانی عظمت و عظیمت کا ایک ایسا نادر اور محیر العقول واقعہ ہے جس سے انسانی عقل حیرت زدہ ہو کر رہ جاتی ہے. جب بھی یہ مبارک مہینہ آتا ہے، پورے عالم اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے اپنے ایمان و یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہیں، اور اس پر جگہ جگہ تقریریں ہوتی ہیں، مضامین آتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں. اس لیے آج میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے حیات طیبہ اور قربانی جیسے اہم موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین کرام، یہ قربانی جس کو دنیا کے تمام مسلمان ہر سال اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو کرتے ہیں، ایک بہت بڑے واقعہ کی یادگار ہے. واقعہ بھی دنیا کی تاریخ کا سب سے بے نظیر اور سبق آموز ہے. اس یادگار کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتی ہے، جس میں ایک غیبی خواب کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے نور نظر کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے. دنیاوی دستور کی طرح دینی اصول بھی ہے کہ جو جس قدر نزدیک ہوتا ہے اس کا اتنا ہی امتحان بھی لیا جاتا ہے. پھر خدا کا دستور ہے کہ جو اس کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اسے امتحان کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. قدم قدم پر جان نثاری اور تسلیم اور رضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں اور آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں. قربانی عید الاضحیٰ بھی خدا کے نزدیکی کی آزمائش میں پورے اترنے اور دعوی عاشقی میں کامل ہونے کی ایک باپ بیٹے کی داستان ہے، جسے دنیا حضرت ابراہیم اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے. 5000 سال پہلے اسی زمین پر 2 بڑے شہر آباد تھے جو اس وقت دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ متبادل اور تہذیب یافتہ قوم کی سکونت گاہ تھے. تاریخ اسے نینوا اور شہر بابل کے نام سے جانتی ہے. یہاں عیش و عشرت، لذت و راحت اور اعلیٰ تمدن کے تمام لوازمات کی محتاج تھی، مگر ساری آبادی خدا کی منکر اور مذاہب کی پرستار تھی. اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، جو کہ صرف بادشاہ اور حکمران ہی نہیں بلکہ خدائی کا دعویدار تھا جس کی عبادت ہر شخص پر ضروری تھی. اس ماحول میں خدا نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ گمراہوں کو راہ راست پر لائیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ دکھائیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آغوش مادر ہی میں تھے کہ خدا کی تلاش میں لگ گئے اور بچپن ہی سے احقاق حق اور ابدال باطل کے لیے تیار ہو گئے. بلاخر وہ وقت آیا جب اپنے ایمان افروز واج سے کفر کی عمارت متزلزل کر دی، جس کی شہادت قرآن نے دی ہے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قربان جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور دلیری پر سب سے پہلے اپنا مخاطب اپنی قوم اور والد کو بنایا تاکہ حق کی نبوت ادا ہو جائے. ان کے امتحان کے کتنے قصے سناؤ، ان کی بے شمار داستانیں اپنے تاریخ میں سمو رکھی ہیں. تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پل کر جوان ہوئے
तो सबसे पहले उस वक्त की बड़ी ताकत नमरूद से वास्ता पड़ा। नमरूद ने 1000 कोशिशें की कि इब्राहिम भी औरों की तरह मुझे खुदा कहे, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बात खुदाई को न सिर्फ ये कि तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि आज की ज़बान में उसके खिलाफ अलम में बगावत भी बुलंद कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अगर वाकई तुम्हारा दावा खुदाई दुरुस्त है तो मेरा खुदा वो है जो हर रोज सूरज को मशरिक से तुलू करता है। अगर वाकई तुम्हें खुदाई का दावा है तो तुम सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये वो वक्त था जब बड़े बड़े सूरमा नमरूद की बातें खुदाई के सामने सरनिगू होकर उसकी बातें खुदाई पर मोहर तस्दीक साबित कर चुके थे। ऐसे माहौल में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हक की आवाज बुलंद करने में कोई कसर न छोड़ी, जिसके नतीजे में मादी ताकत के नशे में चूर नमरूद ने आपको दहकती आग में डालने का हुक्म दे दिया, मगर आपके देवर में कोई शिकन न आया। आपने हक की खातिर शोर में कूदना पसंद किया, लेकिन बातिल के सामने कभी सर न झुकाया। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है में तमाशा लबे बाम अभी। खुदा हर हाल में अपने परस्तार और सच्चे आशिक की बात करता है। चुनाचे दहकती आग आपको कोई नुकसान न पहुंचा सकी और कुदरत ने आपको खुले गुलजार बना दिया। दोस्तों और बुजुर्गों, यही आकर इस सच्चे आशिक की कुर्बानी और आजमाइशों का सिलसिला खत्म नहीं हो जाता, बल्कि जब बुढ़ापे की उम्र पहुंची और 86 साल के हो गए तो आपके यहाँ इस वक्त कोई औलाद न थी। इन हालात में एक आम इंसान भी औलाद से मायूस हो जाता है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील और आपके चहीते पैगंबर है। रहमत इलाही से मायूस होना उनकी शाया निशान न थी। चुनाचे आपने अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार आलम मुझे नेक सालिह औलाद नसीब फरमा। अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल फरमाया और आपकी अहलिया हजरत हाजरा के बदन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। बड़ी आरज़ू तमन्नाओं और दुआओं के बाद तो अल्लाह ने एक खूबसूरत और उम्दा सीरत का बच्चा अता फरमाया, जिनकी उम्र अभी तकरीबन 9 साल की हुई थी। वो अभी सिन शुरूर को भी नहीं पहुंचा था कि इम्तिहान की एक और मंजिल सामने आई, इश्क और मोहब्बत की आजमाइश। ऐसी आजमाइश जिसका नजारा चश्मे फलक ने कभी नहीं देखा था। बस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि मैं अपने चहीते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नाम पर ज़िबह कर रहा हूँ। आपने यही ख्वाब मुसलसल 3 रोज तक देखा। चूंकि अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं, इसलिए आपने इसको मंशा इलाही समझते हुए अपने लायक सआदतमंद होनहार फर्जंद अर्जुमंद को बुलाकर पूछा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कि बेटा आज मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैं तुझे अल्लाह के नाम पर ज़िबह कर रहा हूँ। बेटा बता तेरी क्या राय है। सादतमंद बेटा बाप के इस इशारे को फौरन समझ गया और बोला, अब्बा जान आपको जिस चीज का हुक्म हुआ है आप उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। अल्लाह अल्लाह, इस नन्हे इस्माइल का यह हौसला होता है तो अपने ज़िबह पर आमादगी का इजहार कर देता है। बाप राय भी तलब नहीं कर पाता कि बेटा अमल को तैयार हो जाता है। बाप की इताअत गुजारी का जज्बा और आदाब फर्जंदी का यह पास लिहाज इसके सीने में कहां से आया, बजूज इसके क्या कहा जा सकता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत और फैजान नजर का असर था। बकौल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हुक्म रब्बानी के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे नूर नजर और नूर चश्म को साथ लेकर मक्का से मशरिक की जानिब मिना की तरफ रवाना हो गए। इंसानियत के असली दुश्मन शैतान लाइन को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदा पसंद आई। वो फौरन ताक़ुब में निकल पड़ा, ये जानते हुए कि मुकाबले पर अल्लाह के खलील जैसे को इस्तिकामत है, मगर अपनी तदबीरों से बाज न आया। अव्वल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास एक मेहरबान हमदर्द की शक्ल में आया और पूछा, इस्माइल कहाँ गए हैं। उन्होंने कहा कि अपने वालिद के साथ जंगल में लकड़ियां चुनने गए हैं। उन्होंने कहा, नहीं ये बात नहीं है, तुम गफलत में हो। इस्माइल के बाप उनको ज़िबह करने के लिए ले गए हैं। हज़रत हाजरा बोली, कहीं बाप अपने बेटे को ज़िबह किया करता है। शैतान ने कहा, हाँ ऐसा ही है, वो कहते हैं मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है ज़िबह करने का। यह सुनकर इकलौते बेटे की माँ ने भी वही जवाब दिया जो खलीलुल्लाह के घराने की शाया निशान था। हज़रत हाजरा ने कहा कि अगर वाक़या यही है तो उनको खुदा के हुक्म की तामील करनी ही चाहिए। जब शैतान का यह हरबा कामयाब न हुआ तो अब बाप बेटे के ताक़ुब में लग गया जो शहर मक्का से मीना की तरफ जा रहे थे।
अव्वलन एक दोस्त की शक्ल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोकना चाहा, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि शैतान मुझे नासिक बनकर अपने इश्क के इम्तिहान से रोकना चाहता है। आपने फौरन इसके वार को इस तरह रोका कि 7 कंकरियां मारी और आप हर कंकरी पर तकबीर पढ़ते जाते थे। आज इसी का नाम जुमरा उक़बा ऊला है, जहाँ पर हाजी सुन्नत इब्राहिमी को कंकरियां मार कर जिंदा करते हैं। आप फिर आगे रवाना हो गए। शैतान ने हिम्मत करके फिर वही तकदीर की, मगर आपने अल्लाह के फज़ल करम से फिर शैतान को मार भगाया। ये शैतान था, भला अपने इरादे से किस तरह बाज आ सकता था। इसलिए तीसरी बार फिर उसने रास्ता रोकना चाहा। सैयदना खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस जोर से कंकरियां मारी कि शैतान की तमाम तदबीरें धरी की धरी रह गईं। और जिस तरह शैतान की चालों से बचते बचाते मैदान में कुर्बानी की जगह पहुंचकर अल्लाह के हुक्म की बजावरी शुरू फरमा दी, जिसका नक्शा कुरान ने यूं खींचा है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता अर्रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। बस इन दोनों ने रज़ा और तस्लीम को अख्तियार कर लिया, पेशानी के बाद इस बेटे को पछाड़ दिया। हमने इसको आवाज दी, ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, बेशक हम इसी तरह नेकोकारों का बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा खुली हुई आजमाइश है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी उठाई और ज़िबाह का इरादा फरमाया तो गैब से आवाज आई, क़द सद्दक़्ता अर्रुया, यानी अल्लाह की रहमत जोश में आई और छुरी का हुक्म हुआ कि खबरदार इस्माइल का एक बाल भी कटना ना पाए, और खुदा की कुदरत छुरी के अमल में हाइल हो गई। दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमानों का यह अकीदा है कि इस कायनात में जो कुछ भी होता है खुदा के हुक्म से होता है। आग बेशक जलाती है मगर अल्लाह के हुक्म के बगैर जला नहीं सकती। पानी में गर्क करने की ताकत है मगर अल्लाह के हुक्म के बगैर पानी गर्क नहीं कर सकता। इसी तरह छुरी का काम काटने का है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर छुरी काट नहीं सकती। हम ये कौमी ईद मनाते हुए हंसी खुशी याद करते हैं, या इलाहुल आलमीन हमारा सब कुछ तेरा है, हम अपने 2 मिसाली बाप बेटे के पैरोकार हैं। तो हमसे जब भी जिस भी चीज की कुर्बानी तलब करेगा हम लब्बैक लब्बैक कहते हुए इताअत के लिए सर तस्लीम खम कर देंगे। आज हमें इस याद को दोहराना है, इसी जज्बा को असर व बेदार करना है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।